Hello dear students of class 7. How are you all Student, I am your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Student, as I have uh, previously in my previous video, I have explained chapter 12 motion and time, in which I have explained about the motions, that is the measurement of time in ancient era. In ancient times, how the time were measured by the help of the sundial and few on the behalf of the sundial, just like Jantar Mantar is has been built. Okay, sand clock, or you can say hourglass. Okay, student, a simple pendulum clock that has been made. Okay, now the term related to the simple pendulum, some important terms related to simple pendulum, that is the length of pendulum. It is the length of the thread taken from the point of suspension of the center of the bob. Mean position of the bob. It is the position of the bob when it is rest. O is the mean position of the bob, and extreme position of the bob, it is the position of the bob where it covers the maximum distance from the mean position. Position A and B are the extreme position of the bob. As you can see here, dear student, as you can see here, this is the mean position, and these both are the extreme position. Extreme, the maximum displacement. Okay, and this is the mean position of the bob. So amplitude of pendulum, it is the maximum displacement. Okay, whether the amplitude of a small or large, it has no effect on the time period. Okay, dear student, whether this length of this thread is smaller or longer, it doesn't matter. It doesn't affects the time period. Okay, now time period of a pendulum, it is taken by the pendulum to complete one oscillation. Means when the pendulum from its one extreme, when it reaches to the other extreme, and when it returns to the previous extreme position, that means it complete one complete oscillation. Means एक बार जब अपने मेन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाके फिर वापस दूसरे मेन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस फिर अपने पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी। मीन्स अगर ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ए से बी तक जाने के बाद जब वापस बी से ए तक आएंगी, ये बॉब आएगा, तो उसे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग टाइम टी से डिनोट करते हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए, ओ से होते हुए वापस ए तक आएगा, तो वो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन माना जाएगा। टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज, अगर पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो द टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज कांस्टेंट। द और टाइम पीरियड जो एक पेंडुलम का एक ऑक्सीलेशन में लगता है वो कांस्टेंट होता है। नाउ स्टूडेंट, further today I am going to explain about the measurement of time in modern times. In ancient era, man used events that occurred at regular interval to count the time interval. आज के ज़माने में स्टूडेंट, मनुष्य इंसान, हम लोग कुछ ऐसे घटनाओं का, जैसे सपोज कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ जिसमें सपोज दैट 100 मीटर का रेस कब से शुरू किया, कब वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचा। ओके, इस शॉर्ट इवेंट्स को हम लोग टाइम इंटरवल को हम लोग मापते हैं। ओके, टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू नो द एक्यूरेट लेंथ ऑफ द डे, मंथ और ईयर। आज की टाइमिंग मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स के द्वारा हम एक्यूरेट मेजरमेंट प्राप्त कर सकते हैं, डे, मंथ और ईयर। Days, month and years. The time taken by the earth to complete one rotation about its axis is called day. जो समय पृथ्वी एक अपने कीली पे एक पूरी चक्कर लगाने में लेती है, वो एक दिन कहलाता है। दैट इज 24 आवर, यानी कि 24 घंटे। और इस प्रकार अपने फिक्स पथ पे सन के चारों तरफ जो एक कंप्लीट चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो वो 1 ईयर यानी 12 महीने कहलाते हैं। और एक मंथ यानी 30 to 31 days, except February. February has 28 days in a normal and
इन लीप ईयर 29 डेज होते हैं. द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू ट्रेवल वंस अराउंड द सन इज नोन एज अ ईयर, and every year it takes 365 days and 6 hours, but these 6 hours of every 3 years has kept in reserve, which completes in the fourth year. If and these 4 6 hours of the regular 4 year makes one complete day, that means 24 hour, that means one day. So this one day is added in the fourth year, that is the leap year, and in that year the days, total days are 366 days. We further divide the duration of day into smaller unit of time. These are hour. Further इस डेज को भी और छोटे यूनिट में बदल दिए हम आवर में. आवर से भी और छोटा यूनिट है मिनट्स, और मिनट से भी छोटा यूनिट है सेकेंड. Hours, minutes, and second. Days, months, and years are larger unit of time. To measure shorter duration of time, we need to use smaller unit like hour, minute, and second. Example, छोटे यूनिट को मापने के लिए, छोटे इवेंट को मापने के लिए, सपोज दैट पलक का झपकना एक छोटा इवेंट है जो बहुत कम समय है, तो इसको आवर में नहीं, मिनट में नहीं, बल्कि सेकंड में हम मेजर करते हैं. वैसे ही टाइम टेकन टू कुक वेजिटेबल्स, सब्जी पकाना है, तो अब ये घंटों नहीं लग जाएगा. मान लीजिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, मीन्स मिनट में इसकी काउंटिंग होगी, मिनट्स. वहीं पे सपोज स्कूल की जो आपकी डेली रूटीन की, मॉर्निंग में स्कूल जाना, इवनिंग में स्कूल से आना, तो ये एक लॉन्ग टाइमिंग होता है जिसको हम आवर में काउंटिंग करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज दैट, स्टूडेंट, the in the 24 hours a day as we go begins at midnight and ends to, means there are two type of clock. One is 24-hour timing, and other is 12-hour. So in 24-hour the time starts from one, and in the mid of the night, begins at the midnight and end 24 hours later at midnight. और 1 बजे रात से शुरू होके फिर वापस रात में 12 बजेगा, तो यानी 24 आवर्स वो होते हैं. द आवर बिफोर नून आर डिस्क्राइब्ड एज एम, और दोपहर के पहले का समय एम कहा जाता है, यानी एंटी एंट मेरिडियन. बिफोर मिड डे एंड आफ्टर द नून, और नून के बाद के समय को पीएम से डिनोट करते हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियम फॉर मिड डे. यानी एम और पीएम, यानी रात के 1 बजे से लेके सुबह के 11:59 तक एम, और जैसे ही दोपहर का 12 बजता है तो वहाँ से पीएम की काउंटिंग हो जाने लगती है, और रात को 11:59 तक ये पीएम रहता है, और रात का ठीक जैसे 12 बजता है वो फिर से एएम हो जाता है. और एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, वो है सेकेंड. सम अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर. दो और यूनिट है सेकेंड के अलावा, वो है मिनट और आवर. 60 मिनट makes 1 minute, 60 minutes makes 1 hour, 24 hours makes 1 day, 365 days makes 1 year, and the same way 366 days makes one leap year, 10 years makes one decade, 10 decades make 100 years, that means one century, and 10 century makes one millennium. So student, today many clocks and watches do not have traditional hours, minute or second hands. आज के लेटेस्ट वॉच में आवर हैंड, मिनट और सेकेंड हैंड नहीं होते हैं. इसके बजाय डिजिटल क्लॉक आ गए हैं जिसमें नंबर सिस्टम से क्लॉक में शो होता है. सच क्लॉक्स आर नोन एज द digital clocks. Nowadays, electronic wrist watches are also available in the market. These work on different principles. These are quartz watches. Quartz is a hard mineral consisting of silica. ये क्वार्ट्ज वॉच कहे जाते हैं जो कि एक सिलिका नामक मिनरल से बना होता है. The mechanism in our quartz crystal watch is regulated by a rapidly vibrating quartz crystal. और ये घड़ियाँ उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से वाइब्रेशन के थ्रू चलती है. Each second of watch corresponds to about 33,000 vibration.
और उसका हर एक सेकंड 33,000 बार वाइब्रेट करने के बाद तो एक सेकंड पर वो डिजिटल क्लॉक शो होता है. एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देन यूजेस दीज वाइब्रेशन टू मूव द हैंड्स. और अंदर में अगर उसके डायल के अंदर अब देखें तो एक जो है रेगुलर मूवमेंट होता है क्लॉक के अंदर, और उसको कहते हैं वाइब्रेशन. जब 33,000 वाइब्रेशन होता है तो एक खाने वो सुई घसकती है. Hence, they are very accurate. In some cases, like swimming event, किसी कोई छोटे इवेंट जैसे कि तैराकी की प्रतियोगिता, 100 मीटर रेस की प्रतियोगिता, फॉर स्टडिंग रेट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, कोई केमिकल रिएक्शंस की का टाइमिंग नोट करना, शॉर्ट टाइम इंटरवल हैव टू मेजर्ड एक्यूरेटली. तो इस घड़ियों से हम छोटे टाइमिंग को बहुत एग्जैक्टली माप सकते हैं, जो कि पहले टाइम में ये पॉसिबल नहीं था. फॉर दिस पर्पज स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉचेज आर यूज. इस केस में स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉचेस का यूज किया जाता है. दे कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट एनी मोमेंट बाय प्रेसिंग द बटन. बटन को प्रेस करके उसको हम स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं. स्टूडेंट, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं. द एवरेज एज ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7 इज 12 ईयर एंड 3 मंथ. कह रहे हैं इन टोटल सबको आपको सेकंड में बदलना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट. पहले बात तो ईयर को हम डेज में बदलेंगे और मंथ को भी डेज में बदलेंगे. हम जानते हैं एक ईयर में 365 डेज होता है, तो यहाँ 12 ईयर है यानी 12 में 365 का मल्टीप्लाई करेंगे. हम जानते हैं 3 मंथ में 30 डेज होते हैं. 1 मंथ में 30 डेज, तो 3 मंथ में 3 × 30 कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड करने से टोटल डेज मालूम चला. अब हम जानते हैं कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा डेज आवर में बदल जाएगा. फिर 24 आवर यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल 60 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 टोटल 60 मिनट टोटल मिनट्स मालूम चल जाएगा. फिर उस मिनट में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो टोटल 60 सेकेंड. यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि कैसे उस डेज को 24 × 60 × 60 एक बार 24 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी इसको आवर बदलने के लिए किया, इस पूरे डेज को आवर बदलने के लिए किया गया. जब वो पूरा डेज आवर में बदल जाएगा, जब वो पूरा डेज जो है आवर में बदल जाएगा, तो फिर उस आवर में हम फिर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे. उस आवर में हम फिर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा. पर हमें आंसर मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए, तो जो मिनट बन चुका है उसमें फिर से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे. उस मिनट में आप फिर से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वो सेकेंड्स में आंसर आपके आएंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, ये डेज में 24 का मल्टीप्लाई किया गया तो आवर बदला, फिर 60 का मल्टीप्लाई किया तो मिनट बदला, फिर 60 का मल्टीप्लाई तो सेकंड बदला, और इतना सेकंड टोटल होता है. ओके डियर स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि आपके सराउंडिंग में आप देखेंगे ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ये एक जगह फिक्स हैं. वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स वो मोशन में है. मोशन इज़ ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ. मोशन हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है. वी डांस, किक, क्लैप, रोल, क्रॉल, वॉक. वी सी मेनी थिंग्स मूविंग अराउंड अस. हम बहुत सी चीज़ों को अपने चारों तरफ देखते हैं मूव करते हुए, जैसे घड़ी की सुइयाँ, पंखे का मूव करना, गाड़ियों का मूव करना, बच्चों के खेलते वक्त जहाँ वहाँ दौड़ना, वो भी मूवमेंट ही है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस पोजिशन. एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहते हैं जब वो अपना पोजीशन बदलता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अपने अगल बगल के अनुसार जब वो अपना पोजीशन बदलता है तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट कि वो मोशन में है. थिंग्स लाइक फर्नीचर केप्ट इन द हाउस, जैसे कि फर्नीचर जो आपके घर में रखे हुए हैं. ओके, चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम, बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं. वॉल हैंगिंग, जो दीवार पे जो वॉल हैंगिंग लगा हुआ है. वास केप्ट ऑन द सेल्फ, ये सभी रेस्ट में हैं. बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, वो रेस्ट में है. फर्नीचर भी रेस्ट में है, वॉल क्लॉक भी रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज पोजीशन. और उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब तक कहेंगे जब तक वो अपना पोजीशन, स्थान परिवर्तन नहीं करता है. नाउ स्टूडेंट, स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट और एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु या कोई भी मूविंग करता हुआ वस्तु
take a longer time to commute certain distance, किसी दूरी पे जाने के लिए लंबा समय, लंबा अवधि ले, इट इज सेड टू बी मूविंग स्लो, यानी कि वो काफ़ी धीमी गति से मूव कर रहा है, तभी वो समय ज़्यादा ले रहा है। द ऑब्जेक्ट विच कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूर, एक दूरी जो है बहुत कम समय में तय कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत फास्ट वो गाड़ी मूव कर रही है। वेन सुमायरा गोज टू स्कूल, सुमायरा जब स्कूल जाती है, सी रीचेज देयर इन 15 मिनट्स, वो 15 मिनट में पहुंच जाती है वहाँ पे। हर सिस्टर कवर द सेम डिस्टेंस, और उसकी बहन वही डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करती है। तो आप देख पा रहे हैं वही डिस्टेंस वो एक, उसकी बहन 15 मिनट में और उसकी बहन 10 मिनट में, यानी कि जो 10 मिनट ले रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी बड़ी बहन से, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उससे 5 मिनट अधिक समय ले रही है, इसलिए उसकी दूसरी बहन का स्पीड जो है उसकी बड़ी बहन से 5 मिनट ज़्यादा है, इसलिए वो 10 ही मिनट में कवर कर ले रही है। वेन सी गोज टू स्कूल ऑन हर बाईसाइकिल, अगर वो बाईसाइकिल पे स्कूल जा रही है तो सेम डिस्टेंस कवर इन 5 मिनट, तो वही दूरी अब और कम हो जा रहा है 5 मिनट। When her parents go to school or parents teacher meeting by car, the examples depict that a certain distance can be covered in less time. अब वही दूरी अगर वो उसको फोर व्हीलर से जाना हो तो और कम समय लगेगा। तो स्लो एंड फास्ट मोशन is estimated by comparing the distance traveled by them in a given unit of time. To compare the motion of different moving object, इस प्रकार से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम कंपेयर करें टाइम के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं स्पीड। इट हेल्प्स टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर दैन द अदर। Speed of a moving object is defined as the distance covered by an object per unit time. So, student, speed of a moving object is defined as the distance covered by an object per unit time. Okay, student. Now, speed. What is speed? Distance traveled by time taken. Speed कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट? जितना दूरी आपने तय किया और कितने समय में आपने वहाँ उतनी दूरी तय की, उस दिए गए डिस्टेंस की दूरी को आप लिए गए समय से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड का ज्ञात हो जाएगा। सपोज दैट आप 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस गए 2 घंटे में, तो स्पीड हमेशा पर आवर में निकलता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सपोज दैट स्टूडेंट you have covered total 60 kilometer distance, okay, in 2 hours. So what is the speed? 60 by 2, it will be 30 kilometer per hour. This is the speed, means the total distance divided by total time taken. कुल जितनी दूरी आपने तय किया, कुल कितने समय लगा आपको, उससे जब डिवाइड कर देंगे आप, तो जो आंसर आएगा वो आपका स्पीड होता है। Okay, dear student, understood? I hope so. So again, look here carefully. You can see here 1 kilometer is equal to 1,000 meter, and 1 hour is means 1 hour is coming to 60, and 60, that means 60 into 60 is equal to 3,600 second. Okay, that's written here. 1 hour has been converted into second. So now 1 kilometer means 1,000 meter. So here 1,000 meter divided by 3,600 second, it has came 6 after cutting it. After cutting it, just 20 from here, 20 from here, then again by 2, 2 5s are 10, and here 2 ones are 2, 2 8 is 16, 5 by 18 meter per second. Okay, dear student. So here 5 by 18. So speed in meter, here the speed is in meter per second, can be converted into kilometer per hour by dividing the answer by 5 by 18, answer in meter per second by 5 by 18, or multiplying by 18 by 5. Okay. So student, one question which was left here, you see a simple pendulum in an oscillation
oscillating between the 2 points A and B as shown in the figure. The figure as you see here, A and B, between the two position, this pendulum is swinging. Is the motion of the bob uniform or non-uniform? Is uniform or non-uniform? Student, a simple pendulum is oscillating between A and B as in the figure. Is the motion of a bob uniform or non-uniform? So the answer is non-uniform because it's while moving after before it is being the motion was very fast, but slowly it becomes slower. So यूनिफॉर्म मीन्स एक तार शुरू से लेकर अंत तक एक ही रफ्तार में मूव करते रहना। पर जब ये स्टार्ट होता है तो मान लीजिए इसकी स्विंगिंग फास्ट रहती है, और जैसे जैसे वो धीमा होता है उसकी स्विंगिंग जो है वो धीमा हो जाती है और फाइनली रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। इसके अब मैंने आपको बताया कि कैसे आपने इस बच्चे की एज को 12 ईयर 3 मंथ को टोटल हमने सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया। ये आपके डिजिटल क्लॉक आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें आपके आवर मिनट और सेकंड दिए रहते हैं, वो भी सारे डिजिट मीडियम मोड में दिया था। ये आवर है, ये आपका मिनट मिनट है, यहाँ ये 59 मिनट है, ओके, और ये 45, सॉरी डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट। So today up to here only. Meet you in the next video. Till then, thank you. Have a nice day, student.